So, a very good afternoon to all my dear students. Let us begin with today's session. This class is TYBMSB Division Marketing. So, what we are going to do today is revision lectures for Unit 1, 2, 3, and 4 for your subject CRM, which is nothing but Customer Relationship Management. Yes. So, students, in the first lecture, will be taking up Unit number 1 and 2. Next lecture we'll be taking up unit number 3 and 4. So let us quickly begin, students. Okay, this video will also be available on my YouTube channel for your reference. Okay, so now students, first of all, since you all know customer relationship management, I've always told you this thing hundreds of times. Yes, in today's time, customer is the king. Yes or no? So maintaining relation with the customer is very important. If we want to, हमारे जो भी organizational goals है of achieving profits, having a good brand name, तो उसके लिए goals achieve करना is very important, students. Okay, so let us now first understand what exactly this subject is all about. It is like a mix of all these four components, students: marketing, sales, support, orders. Marketing में, students, companies run many campaigns, generate leads, form a database. Means what, students? First thing is to ensure they will have a database, like how college keeps a database record of all the students, right? So companies also, if they want to effectively target the customers, what they can do basically is, they have to make sure कि they have all their details, their email IDs, names, contact numbers. Generate leads का meaning क्या है, students? From one thing we can maybe relate it to another. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू ऑल विल स्टडी, सपोर्ट में आएगा वो फीडबैक जनरेशन एंड ऑल, रन कैंपेन्स. कंपनी स्टूडेंट्स इन टूडेज टाइम दे रन सो मेनी कैंपेन्स, राइट? बेसिकली दे वांट टू मेक श्योर कि कस्टमर्स जो है, ओके, मैक्सिमम वो हमारे साथ इंटरेक्ट करे. कई बार कंपनीज उन्हें फ्री में प्रोडक्ट्स देती है थ्रू कॉन्टेस्ट, प्रमोशंस, राइट? सेल्स. असाइन लीड्स मीन्स, इसमें असाइन लीड्स का मीनिंग क्या है, स्टूडेंट्स? दे आर मेकिंग श्योर कि राइट सेल्स पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, बिकॉज सेल्स पर्सन आर द फेस ऑफ आवर कंपनी, राइट? दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर ब्रांड. So that is what qualify leads. Obviously, after proper training, they need to qualify themselves. In future also, if you will do MBA, students, उसमें how these entrance exams, CAT, CET, they are the various qualifiers. Yes, convert leads means make sure ये जो training है, after all, students, training में also I have told you, I had worked in training department of Godrej. Company is investing lakhs and crores of rupees, so obviously they will expect कि they will generate good amount of return also. Okay, and track opportunities means to make sure कि कंपनी जो है, SWOT analysis, strengths, weakness, opportunities and threats. तो they make sure कहीं भी उन्हें opportunities मिल रही हो, they are able to tap it. Okay, and आज के time में you all know customers से ही company is going to earn profit. That is why this is a relatively new subject. We didn't have this during our days. Okay, deliver products, product invoices, basically, students, this all comes in logistics, right time पे product delivery. I have told you many times, students, ये जो time होता है ना, lead time, means what? The time right from the customer, उसने maybe if he has placed an order today, okay, तो by the time the order reaches him, ऐसा नहीं है ना कि after 1 month, 2 month he will, the order will reach him, right? Timely delivery is very important. Okay, support, students, I think the whole second, third, fourth unit is about this call centers, how companies are appointing the right people call centers में to, उनके जो भी customers के queries है, they are having their toll free helpline numbers, right? तो उसके लिए भी students training conduct करनी पड़ती है. What they basically do is, when we are attending customers, they have to, like, basic mannerism, like wishing them good morning sir, good afternoon sir, correct? That is what is told over here. Provide service
मीन्स कई बार ऐसा नहीं है कि गिविंग देम ओनली promises and not fulfilling them. Promises are meant to be fulfilled, right? And providing knowledge base. Now knowledge base means what students, हम बोलते हैं ना proper. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अगर प्रोडक्ट है, यू नो इट बेसिकली स्टूडेंट्स, क्या होता है नॉलेज बेस, मीन्स कस्टमर्स जो है उनको आफ्टर ऑल सी दे कैन आस्क अस एनी क्वेरीज, राइट? वी हैव टू मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो लोग हैं एम्प्लॉयज, उन्हें राइट वे में दे नो द इश्यू. अगर आप देखो स्टूडेंट्स, इफ टीचर स्टूडेंट्स आर आस्किंग डाउट्स टू अ टीचर, if teacher is only not aware, yes or no, so how will students queries be resolved? Okay, that is what is told over here. So I hope you have understood now what is the meaning of CRM as a whole. आपको लग रहा है कि ultimate aim मैम of CRM is customer satisfaction. Yes, that's a very true thing students. But उसके अलावा भी there are so many, हम बोलते हैं ना, behind the scenes that happen. All of this is a part of CRM. Okay. So if anyone has any query, you can ask me students. I'm sharing the next slide. अभी हम लोग जो कर रहे हैं, this is a part of unit 1. Okay. Okay. Now the next point, if you will see students, is CRM implementation. Okay, like basically now see in your textbook, if I will tell you, textbook में it's written customer as friends, customers as partners. Means if I will tell you students, basically what it's told over here is कि see there is a certain way in which we have to approach customers. ऐसा नहीं है ना, first of all कोई भी customer is a stranger. You people remember how when your college started, all the teachers, you all people also, you were new to, I know you since first year, right? How you were new to each other. So what it is told over here, ये जो trust होता है ना students customer का, that has to be won over a period of time. Okay, so that is what is told over here basically. सो अब इसमें इफ आई विल टेल यू, इसीलिए आजकल कंपनीज जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर इन्वेस्टिंग सो मच. आप देखो कॉल सेंटर्स एंड ऑल, वो सब सेटअप करना, ई सी आर एम, फोर्थ यूनिट इज ऑल अबाउट ई सी आर एम. सो दैट इज वॉट इज टोल्ड ओवर. तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इनिशियली हाँ भले इफ इट इज एक्सपेंसिव, okay, but companies जो होती है they are basically investing in it. Why? Because they have understood कि overall long term survival of business के लिए CRM is definitely helpful for us. नए customers if we want to attract, better customer service provide करनी हो उसके लिए. Okay, so now if I will tell you students, ये जो process है of CRM implementation. Okay, implementation means what students? How anything that we have planned, we are actually putting it into practice. So that is what is told over here. So the first point that is written is business strategy. Strategy ka meaning, students, it is nothing but planning. Okay, customer loyalty. Now if I will tell you students, customer loyalty. Now if you remember students, okay, now यूनिट 4 में आई हैड डन एन आंसर विथ यू. ओके, कि 7S स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क याद आया? तो उसमें ये सब एस जो थे आते थे, स्ट्रैटेजी, स्किल्स, स्ट्रक्चर, स्टाफ, शेयर्ड वैल्यूज. आई विल एक्सप्लेन यू ओवर हियर. Okay, for example customer loyalty, everyone wants to make sure कि उन्हें loyal customer मिले. Loyal customer means someone who's going to buy their products again and again. Okay, supply chain integration means all our जो भी हमारे channels है students. See कई बार students, for example if something happens wrong, कुछ गलत होता है, if you receive any product delivery late, ओके, तुम ये नहीं देखोगे कि उसमें कस्टमर सर्विस की गलती नहीं है, मे बी इट्स द डिफॉल्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, बट तुम क्या बोलोगे कि अरे ये कंपनी ही इट इज नॉट एफिशिएंट, राइट? सो इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. सो अगेन आज के टाइम में इफ यू सी स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन हैज बिकम वेरी इजी यूजिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी. And organizational efficiency. Efficiency का meaning is nothing but proficiency.
ओके, अब प्रोफिशिएंसी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? अचीविंग एक्सीलेंस। मतलब कंपनी ने, एज आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स, अगर इतना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, they will obviously expect, see, everyone, students, first of all, try to understand, every company, ऐसा नहीं है कि everyone learns through failures, but ultimate winners वही है, those who are learning through their failures, right? That is what is told over here. तो उसमें वही का है, तो इसके लिए आई होप यू नो द कंसेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। कंपनी क्या करती है? दे आर सेटिंग सम टारगेट्स, सम बेंचमार्क्स. Okay, like for example, how you students, you can even set your benchmarks कि maybe in TY I want to achieve at least 90%. Correct? So that has become your target. कुछ भी करके आपको इतना achieve करना ही है. Okay. अब इसमें I was telling textbook में it's written the 5S. First one is, if you remember, skills. Means हम बोलते हैं ना employee skilled होने चाहिए, and companies obviously train them to be skilled. Correct? फिर structure. Structure is nothing but organizational structure, students. Means basically company में 3 levels होते हैं. टॉप लेवल जिसमें सीईओ वीपी होता है, मिडल लेवल व्हाट आई वाज देयर इन गोदरेज, असिस्टेंट मैनेजर, फिर बॉटम लेवल फैक्ट्री लेवल के वर्कर्स एंड ऑल, राइट? तो स्ट्रक्चर, हर एक कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बात की गई है. ओके, next if I will tell you strategy, you all know the meaning of strategy. I taught you in strategic management, nothing but long term planning. Correct? So company has to have a proper plan to think about the future. Staff, very important. Staff में ही students team work आ जाता है. You know this by now by heart. Together everyone achieves more. Correct? So right staff हो तभी जाके it is possible. ओके, एंड शेयर्ड वैल्यूज मीन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, कि बेसिकली कई बार टॉप मैनेजमेंट फील समथिंग एल्स, बट एम्प्लॉयज को ही अल्टीमेटली काम करना होता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एम्प्लॉयज आर नॉट एबल टू अलाइन टू द कंपनीज मिशन एंड ऑल, राइट? सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. शेयर्ड वैल्यूज मीन्स हम लोग बोलते हैं ना, इवन मेनी अ टाइम्स इफ यू सी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज आर ऑल्सो कंसल्टेड for decision making through suggestion boxes. There are so many things here. Okay, so I hope you have now understood this answer. Okay, I'll share now, start sharing the next slide with you. Just give me a minute. Yes, now students, textbook mein there is one more answer basically. This is transactional versus relationship marketing. ये मैं आपको समझा दूंगी. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग टू एनी शॉप, ओके, दैट इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग. मैं उन्हें, आई एम गिविंग देम द मनी, दे गिव मी द प्रोडक्ट. सिंपल हम बोलते हैं ना, हमारा गिव एंड टेक रिलेशन. जैसे ही मैंने प्रोडक्ट लिया, माई रिलेशनशिप इज ओवर विद देम. ओके, सो सेम वे अब ट्रेडिशनल, पहले क्या होता था स्टूडेंट्स? ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग मींस जो ओनर्स होते थे, दे वर नॉट रियली कंसर्न्ड, राइट? उन्हें पता था कि हम लोग सिंपल, हम लोग बोलते हैं ना कस्टमर को, वंस वी हैव सोल्ड द प्रोडक्ट, आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन बेसिकली. ओके, तो उसमें वही लिखा है कि शॉर्ट टाइम पीरियड, हमारा फोकस बहुत कम होता है कस्टमर सर्विसेज का. इट्स लाइक सिंगल सेल, मतलब हमने बेच दिया, बस हमारा काम हो गया, नथिंग एल्स. ओके, क्वालिटी इज अ कंसर्न मीन्स वी प्रोवाइड गुड क्वालिटी, मतलब बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कंसर्न है वो. बट इफ यू सी स्टूडेंट्स, टूडेज मार्केटिंग रिलेशनशिप, हम लोग बोलते हैं ना टू वे कम्युनिकेशन. Okay, that is what is told over here. So two-way communication, when is it possible students? If you see basically, हम customers के साथ सी students relationship ऐसा नहीं है एक ही महीने में बन जाता है. We constantly communicate with them.
उनका फीडबैक एंड ऑल जो है सुनते हैं, करेक्ट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर। तो क्वालिटी सबका कंसर्न है। हाई कस्टमर कांटेक्ट, आप लोग देखो कंपनीज लाइक Amazon एंड ऑल, they are constantly in touch with their customers, feedback पूछते हैं, कॉल करते हैं, correct. High service means providing the best service students, because our main aim as a company is not only to earn profits but also to make sure कि हमारा एक अच्छा good brand image हो. Okay, so I hope this PPT is clear students. ये भी अगर आप देखते हो students, जो आपका chapter 2 है ना, relationship marketing and CRM, उसका part है. Okay, I hope it's clear. Anyone is having any query, you can ask me. You can also type in the chat box students. Okay, I'm reading your responses. And I would request you students, ये जो video है ना, please make sure you watch it once again. आपको ही काम में आएगा. Okay? Yeah. Now if you will see students this PPT. Okay? Okay. Yes. In your first chapter, okay, there is an important answer, types of CRM. तो उसमें all types we need not remember, जो important है we will do that. Okay, so the first one is operational CRM. Operations का you know the students very well meaning, day to day जो चीजें होती है, like for example if there is a call center, they normally get many calls every day कि ये प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, रिटर्न चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, राइट. सो ऑल दैट डे टू डे इश्यूज कम अंडर ऑपरेशनल CRM. ओके, अगर इश्यूज जूनियर से नहीं सॉल्व होते तो वो सीनियर्स तक जाएंगे. ओके, नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट वन, एनालिटिकल CRM. अब स्टूडेंट्स एनालिटिकल CRM में क्या होता है बेसिकली, सी एज अ कंपनी आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स, ग्रोथ इज आल्सो अवर एम, राइट. सो ऐसा नहीं है कि वी हैव टू सर्व ओनली अवर एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कस्टमर्स, वी हैव टू आल्सो एज अ बिजनेस कीप ऑन ट्राइंग कि हम नए कस्टमर्स भी ढूंढे. तो उसमें क्या कहा है स्टूडेंट्स की करंट जो कस्टमर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट ऑल द डेटा. ओके, एंड उनके रिटेंशन रेट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, फ्यूचर में आई हैव टोल्ड यू अबाउट स्विचिंग कॉस्ट. अगर एक कस्टमर इफ ड्यू टू एनी रीजन, bad service, whatever it is, if we were not able to serve him in a proper way, he will easily switch to another brand, right. That is what is told over here. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है. Okay, so that is why you might be seeing students sometimes giving you simple example. कई बार some companies ask you for your birth dates also, right. क्यों, फिर आपके birthday पे they send you emails कि happy birthday sir, we are giving you this discount. These all are latest trend students. CRM का बहुत जरूरी है. Imagine if someone wishes you on your birthday, obviously we all are human beings, we all have emotions, anyone will feel good, correct. And collaborative, now you know the meaning of students collaboration. So what basically happens यहाँ पे is, all the departments like sales है, marketing है, technical support है, HR है, basically everyone has to think from one point of view कि चलो whatever work I am doing for my organizational company's benefit. ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. सबका जब अलाइनमेंट थिंकिंग एक जैसा होगा तब भी जाके अचीविंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विल बी पॉसिबल. ओके, एंड बाकी जियोग्राफिक CRM एंड ऑल यू नीड नॉट रिमेंबर दैट. सो आई होप अगेन दिस PPT इज क्लियर स्टूडेंट्स. अल्टीमेट एम हमारा यही होना चाहिए, customer satisfaction, that is the most important thing. I hope it's clear. यहाँ तक anyone is having any queries students, please ask me right now, yes or no. Okay, now let me see the next slide. Yes, this is the next slide students. Okay, in your textbook now there is a concept, basically 7 C's of CRM.
इसमें फर्स्ट वन फॉर एग्जांपल सी दिस इज द पीपीटी स्टूडेंट 7 C's of ECRM. First one is convenience. You know, students, customers को ultimately we have to provide them convenience, right? उन्हें product time पे कई बार if you see students on Amazon also, customers are having these option. उन्हें अगर delivery late चाहिए, पहले चाहिए, they are given this option as per the convenience. कई बार when we book orders also, so at that time they ask us basically कि which time slot is convenient for your delivery, right? That is what is told over here. Next, if I will tell you students, next जो है customer value and benefits. Okay, means what students? Customer value I have told you, हमें उनके problem सुनने चाहिए, right? Proper communication is very very important. It has to be two way students, never one way. Cost to the customer means what students? If I will tell you price की बात हो रही है, so again cost जो है, okay, we have to make sure we provide them the right prices. उन्हें लग रहा है कि whatever they are paying, anyone will aim कि maximum utilization हो उसका. Communication का point I covered. कंप्यूटिंग एंड कैटेगरी मैनेजमेंट इश्यूज मीन्स व्हाट स्टूडेंट? मैंने आप लोगों को कहा था इन कॉल सेंटर्स एंड ऑल हाउ वी आर कैटेगराइजिंग. हम लोग सब हमारे जो इश्यूज है प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं. Okay, I hope you all are understanding. And customer facilities, community. Ultimately, ultimate aim वही होना चाहिए, group community of happy customers. Customization, you all know students now, for example, phone में भी. If, for example, if you are buying a smartphone, आप अगर देखते हो उसमें so many options are available. आपको black color चाहिए, red color चाहिए. Okay, so वही कहा है students, customize as per the needs of the customers. Okay, and content means students, हम regularly ऐसी technology बनाए जिससे क्या होता है, people are well very much in the process. ओके वो लोग हमारे साथ लिंक कर सके थ्रू प्रॉपर एडवर्टीजमेंट्स. ओके या तो फिर आई विल टेल यू प्रॉपर एडवर्टीजमेंट्स के अलावा भी कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जस्ट इफ यू पीपल यू शुड ऑब्जर्व अमेजोन एंड ऑल. अभी उन्होंने इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट स्टूडेंट्स, क्विजेज गेम्स वो भी स्टार्ट कर रही है, एंटरटेन कर रहे हैं कस्टमर को. ओके सो दैट इज व्हाट ओवरऑल आप यूनिट 1 में देखोगे ना स्टूडेंट्स, उसमें यही का है कि कस्टमर वैल्यू, कस्टमर लाइफ साइकिल means what students? Overall how much he is related to our company. Okay, ultimately I have told you, if we want to be successful in a long term students, we have to think much beyond our profits. Correct? So I hope it's clear till here. Okay, so students, now what we are starting, this is a part of second unit. Okay, from where I had taught you, I specially took this lecture even though I hadn't taught you the first unit. Okay, still if I will tell you, मैंने आप लोगों का revision लिया for a more better experience. Correct? Okay, so now let me start sharing the next slide. These concepts we have already done it students, if you remember. यहाँ से ही हमने lecture start किए थे. Cross selling versus upselling. Okay, see, just look at this PPT students. You can easily understand. अभी unit 2 has started. क्रॉस सेलिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? कंपनी जो है, टेक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स. इनिशियली दे वर सेलिंग ओनली फ्रेंच फ्राइज, बट अभी क्रॉस सेलिंग मीन्स दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स दे हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग, बर्गर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हैप्पी मील, यू नो इट वेरी वेल. इससे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? क्रॉस सेलिंग से दे आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. लाइक हाउ फॉर एग्जांपल इनिशियली आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, ओके पहले वो लोग क्या बेचते थे? लुक एट व्हाट दे आर सेलिंग नाउ. दे आर इनटू ऑल स्पाइसेस बेच रहे, सो मेनी. रिलायंस ऑल्सो स्टार्ट किया था मसाला से. लुक एट वेयर दे आर नाउ. ज्वेलरी, क्लोथिंग, फूड मार्ट, दे आर एवरीवेयर. ओके सो क्रॉस सेलिंग, इससे बिजनेसेस का प्रॉफिट, बॉटम लाइन हम जो बोलते हैं वो भी एक्सटेंड होता है.
Okay, and upselling का meaning you know very well students. For example you know McDonald's, initially वो लोग क्या करते थे, like French fries होता था, they will now provide more quantity. आप लोग देखो students how these, इसमें I had given you the example of telephone operators. Okay, like for example अभी सब सिम operators है, जियो का देख के they have increased the prices of the plans. करेक्ट, 50 का प्लान होता था पहले, अब 70-80 कर दिया है, बट उसके साथ यू नो फीचर्स भी, फैसिलिटीज भी ज्यादा दे रहे हैं. मे बी फॉर एग्जाम्पल यू नो आपको ज्यादा कॉलिंग मिलेगा, ज्यादा डेटा मिलेगा, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अपसेलिंग. इसमें यू नो स्टूडेंट्स कस्टमर को भी बेनिफिट मिल रहा है एंड कंपनी का भी प्रॉफिट मार्जिन. जस्ट इफ यू रिमेंबर दिस फोटो ना स्टूडेंट्स, दैट विल बी मोर देन इनफ. ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, दिस क्विकली आई विल गो थ्रू इन योर टेक्स्ट बुक. कस्टमर रिटेंशन का, यू नो रिटेंशन का मीनिंग यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स. वी विल मेक श्योर कि कस्टमर जो है दूसरी ब्रांड को स्विच ना हो. दैट इज वाई व्हाट आर द वेरियस टेक्निक स्टूडेंट्स. कई बार हम बोलते हैं ना, टॉक टू देम, उनके क्वेरीज आंसर किया कीजिए, प्रॉपर वे में हैंडल करो. ओके, हमारा सपोर्ट स्टाफ है, इसलिए स्टूडेंट्स ही सपोर्ट स्टाफ कस्टमर डायरेक्टली इनके टच में आते हैं, राइट. सो अगेन इट इज देयर ड्यूटी. अगर ये लोग का ही एटीट्यूड इफ इट इज रॉन्ग, ओके, इट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम. फीडबैक सिर्फ नाम के लिए मत लिया कीजिए स्टूडेंट. जो भी सजेशंस दे रहे हैं, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, कई बार जो बेस्ट सजेशंस होते हैं they will always come from the employees, remember, because sorry, employees and customers, because employees हमारे कंपनी में काम करते हैं and customers are the one who use our product. ओके, एंड लुक बियॉन्ड द फर्स्ट परचेज. मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यू नो कैसे होता था स्टूडेंट्स, राइट. प्रोडक्ट बेच दिया, अवर रोल इज ओवर. बट नाउअडेज व्हाट इट इज बीइंग टोल्ड ओवर योर स्टूडेंट्स की सिर्फ इतना नहीं है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स वी हैव टू फोकस ऑन. मतलब वही कहा है स्टूडेंट्स की यू नो प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए. आज के टाइम के कस्टमर यू नो देम वेरी वेल स्टूडेंट्स, राइट. सी मिस्टेक्स आई हैव टोल्ड यू, सर्विस रिकवरी, कई बार गलती भी हो जाती है. इफ वी आर लेट, हमने कस्टमर को बोला था फॉर एग्जांपल 48 आवर्स में वी विल रिप्लाई, बट हम नहीं रिप्लाई कर पाए, तो कई बार वो लोग यू नो वी हैव टू ट्रैक कंप्लेंट्स कि वेयर वी वेंट रॉन्ग. ओके, कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कस्टमर्स के वेट टाइम बढ़ जाते हैं अगर, सो अमेजोन एंड ऑल ऐसी कंपनी उन्हें कई बार प्रोडक्ट डिस्काउंट में भी दे देती है. ओके, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म. चलो स्टार्टिंग में उन्हें भले लॉस फेस करना पड़ रहा हो, बट फ्यूचर में दे विल मेक श्योर कि आगे भी वो हमसे रिलेशन टूट ना जाए. दैट इज द मेन एम. अब इसमें इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में इट्स रिटन फिनेंशियल बॉन्ड, सोशल बॉन्ड. मतलब बेसिकली दिस इज वेरी इजी. फिनेंशियल बॉन्ड मीन्स व्हाट, फिनेंशियली आप कस्टमर्स को कई बार यू नो कस्टमर ही वेट्स फॉर सेल्स एंड ऑल, आपको पता है, राइट. सो अगेन ऐसी वी इट इज बेसिक स्टूडेंट्स, एवरीवन लाइक्स टू सेव मनी. सोशल बॉन्ड्स मीन सोशल टाइज हम लोग बनाते हैं रादर देन कनेक्टिंग यू नो एट अ पर्सनल लेवल. कस्टमाइजेशन बॉन्ड्स, ये मैंने कहा प्रोडक्ट्स हम लोग जो ऑफर करते हैं दे आर मोर कस्टमाइज्ड उनके नीड्स के हिसाब से. ओके, एंड स्ट्रक्चरल बॉन्ड. स्ट्रक्चरल मीन्स इफ आई विल टेल यू यू नो कई बार कंपनीज को स्टूडेंट्स इसमें दोनों दे हैव टू मैनेज, फिनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सोशल. मतलब कस्टमर को अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन करने हैं एंड कॉम्पिटिटिव प्राइजेस आल्सो वी हैव टू प्रोवाइड देम. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. अब इसमें और एक कंसेप्ट भी है स्टूडेंट्स, इवेंट बेस्ड मार्केटिंग का. इसमें क्या होता है, कंपनीज यू नो मेनी टाइम्स व्हाट दे डू, कई इवेंट्स अरेंज करते हैं, राइट, ऑर्गेनाइज. द मेन एम, इवन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज स्टूडेंट्स, देयर वर सो मेनी यू नो एक्टिविटीज दैट ऑलवेज वेंट ऑन. ओके, इवेंट से क्या होता है, सब लोग टुगेदर, एवरीवन विल वर्क एज अ टीम.
ओके, तो उसमें वही कहा है स्टूडेंट्स, राइट वे। नाउ आई शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। राइट वे में अगर हमें कस्टमर को सर्विस करनी है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। पहले तो हमारे पास उनका डेटाबेस होना चाहिए। वी शुड नो हु दे आर। हम लोग बोलते हैं ना, धीरे धीरे एक एक स्टेप वी हैव टू डू। ओके, सो नाउ इफ यू सी स्टूडेंट्स, अभी ये जो पार्ट आ जाएगा, दैट कॉल सेंटर्स का पार्ट आएगा। Okay, so let me just start sharing the screen. Just give me a minute. Yes, see, this is the PPT, students. So if you will see students, आजकल softwares all and all का part I will be covering in the next lecture, 4th unit में है वो। तो एक यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स का। एक आपको अगर पता है बिग बाजार में एंड ऑल स्टूडेंट्स, ओके, लाइक अमेजोन का ही एग्जांपल ले लो। व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, आपने एक बार एक शॉपिंग किया है कुछ, तो नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली दे विल टेल यू कि इजंट इट द टाइम टू रीप्लेनिश, रीफिल योर स्टॉक। ओके, तो ये सब चीजें हैं। फिर कॉन्टैक्ट सेंटर सेल्स सपोर्ट, मतलब आपने देखा होगा दीज कॉल सेंटर्स एंड ऑल। दिस इज अ फोटो ऑफ अ कॉल सेंटर, राइट स्टूडेंट्स? तो उसमें भी कॉल्स के वही लिखे, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब कॉल्स जो हमें आते हैं एज अ कंपनी, वर्क ऑन देम। सेकेंड थिंग इज आउटबाउंड, मीन्स जो कॉल बाहर जा रहे हैं। समटाइम्स कस्टमर को कॉल किया जाता है, राइट सर आपका इश्यू सॉल्व हुआ कि नहीं, और जस्ट टू टेक अ रेगुलर फीडबैक। तो कॉल सेंटर्स में भी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पीपल, प्रोसेस, कस्टमर। आज के टाइम में इफ यू सी स्टूडेंट्स, कॉल सेंटर्स में भी देर इज समथिंग नोन एज ICR, इंटेलिजेंट कॉल रूटिंग। ओके, CTI, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इतना डिटेल में यू नीड नॉट रिमेम्बर स्टूडेंट्स, जस्ट आपको पता होना चाहिए। कॉल राउटिंग, अब इफ यू विल रिमेम्बर स्टूडेंट्स कॉल राउटिंग का, देर इज वन मोर PPT, आई विल जस्ट शेयर इट विथ यू। Just give me a minute. Shruti, attendance I'll share it in the next lecture. Okay, next lecture भी हमारा ही है. So just give me a minute. Yes, ये आंसर हम कर लेते हैं. After that we'll take a break for 10 minutes, students. Okay, types of routing. Now students, in this आपकी textbook में जो दिया I'll explain that. ओके, क्यू बेस्ड राउटिंग। क्यू का मीनिंग क्या होता है? लाइन। सो नॉर्मली आपने देखा होगा कई बार फ्लिपकार्ट में बोलते हैं ना, योर वेट नंबर, यू आर 5th इन द लाइन, ओके, यू आर 2nd इन द लाइन। तो मतलब हम बोलते हैं ना, जो पहले आता है दे आर अकोमोडेटिंग देम। ओके, सो दैट इज व्हाट, उसको हम बोलते हैं क्यू बेस्ड। फिर आगे एक है सर्विस लेवल, मीन्स जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट, सर्विस लेवल कई बार आपने देखा होगा कंपनी के गोल्ड कस्टमर्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, तो उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू वर्कफोर्स राउटिंग, मीन्स व्हाट इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, workforce routing means अगर for example if anyone who is having a very bad experience, कोई अगर कस्टमर बहुत गुस्सा है, we will make sure कि ये इश्यू कोई सीनियर लेवल का पर्सन हैंडल करे, राइट? तो नेक्स्ट भी जो है स्टूडेंट, स्किल बेस्ड राउटिंग। इसमें वही कहा है स्टूडेंट्स की बिजनेसेस जो उनके, कई बार उसमें भी कॉल ऑपरेटर्स आर ऑल्सो डिफरेंट स्टूडेंट्स। कई लोग जो होते हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस, हम बोलते हैं ना कस्टमर्स को बाटली में उतारना, दे आर वेरी गुड एट कन्विंसिंग देम। तो ऐसे पर्सन को हम हैंडल करने को देते हैं अगर एक से नहीं हो रहा है। जियोग्राफिकल मीन्स बेसिकली आपको पता है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ इंडिया को हाउ वी डिवाइड, सेम वे जियोग्राफिकल राउटिंग। एंड लोड बैलेंसिंग, जैसे कि मैंने कहा सेल टाइम पे एंड ऑल व्हाट कंपनीज आर डूइंग बेसिकली इज वो लोग जो है स्टूडेंट्स, दे आर अपॉइंटिंग मोर पीपल। ओके, क्यों ज्यादा लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं? सो दैट उन्हें आसान हो कस्टमर्स को, नो कस्टमर शुड बी लेफ्ट अनअटेंडेड। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। सो वी विल स्टॉप हियर, अभी हमारा यूनिट 2 हुआ नहीं है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल द 4 यूनिट्स टुडे। ठीक है, सो अटेंडेंस शीट एंड ऑल आई विल बी गिविंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।